Welcome to today's class. Today we will discuss about the chemical reaction. Have you already heard about the chemical reaction ever? याद करिए क्लास 7 में आप लोगों ने फिजिकल और केमिकल चेंज पढ़ा होगा। वहाँ केमिकल चेंज को आपने कैसे डिफाइन किया था? When the change is taking place in the molecular level of the substance, or when a new substance is formed, the change is a chemical change. So I am telling you, if there is chemical change, there must be a chemical reaction is performed. उस chemical change को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको समझाने के लिए एक chemical reaction जरूर वहाँ पर होती है। chemical reaction से हम उस chemical change को समझ सकते हैं। तो chemical reaction क्या बता रही है? chemical reaction का क्या आउटकम है? पहली बात तो chemical reaction takes place when chemical change is performed. और दूसरी बात, when two or more substances are combined to form a single compound or single substance, then maybe more than one. It is not single always. Sometimes the products can be more than one also, which you will see in different examples. But a new substance is always formed when a chemical reaction is performed. This is the I think most regular check of the chemical reaction. A new substance is formed. Okay, so how will you observe that a chemical reaction has been performed or not? How will you check whether a new substance is formed or not? The question is arises, what are the effects of a chemical reaction? How can you conclude that whether a chemical reaction is performed or not performed? So let me tell you the effects of chemical reaction. Effects of chemical reaction. The first observation is evolution of gas. Yes, the evolution of gas. So let us say chemical reaction. When H2SO4, which is in aqueous form, reacts with zinc Zn, और आप सबको पता होना चाहिए कि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, मींस जिंक पे कितने चार्जेस होते हैं, इट इज ऑलवेज +2, जिंक कैरीज +2 चार्ज, एंड इन आवर प्रीवियस क्लासेस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड सल्फेट, इट इज अ रेडिकल व्हिच इज कैरिंग -2 चार्ज, हाइड्रोजन कैरीज +1 चार्ज। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, तभी आप एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। तो जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन एक गैस के रूप में इवॉल्व हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी और एक्वस सॉल्यूशन, aqueous form of zinc sulfate is formed. What happens in this chemical reaction? A gas is formed in the form of bubbles. छोटे छोटे bubbles बनेंगे और गैस वहां से निकलकर बाहर चली जाएगी। So when you are performing a reaction, bubbles are formed or gas or some gas is released, you can say that the chemical reaction is performed. What are the next effects of the chemical reaction? Second, change in color. Change in color. Do we have any example? Any example of chemical reaction when color change has been taken place? Let us see. Copper sulfate CuSO4 is a well-known compound.
which is basically blue in color. It is blue in color, and when it reacts with iron, what happens? Copper is a less reactive element than iron, so that iron will replace copper from here and it will form a bond with sulfate, and a compound is formed, ferrous sulfate, and copper will be replaced. But the key factor is that the color of the sulfate solution is not blue. It has now become green. Here the sulfate solution, which was a copper sulfate, the color was blue, and after the reaction the sulfate solution become of the green color. यहाँ पर हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन के बाद उस सब्सटेंस के कलर में, जो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, उसके कलर में अपने प्रीवियस रिएक्टेंट के कलर से डिफरेंट वेरिएशंस हैं, वो उससे एक अलग कलर में नजर आ रहा है। तो अगर इस तरह के फेनोमेना हो रही है केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो हम कंफर्म होंगे कि हमारी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। देयर मस्ट बी अ केमिकल रिएक्शन इफ द कलर इज चेंजिंग। ओके, व्हाट आर द नेक्स्ट मेजरमेंट्स? Formation of precipitate. Formation of precipitate. Yes. What is the formation of precipitate? Let us see an example. Barium chloride, BaCl2. And you must know the barium chloride, how does the barium chloride is formed? Barium is +2. Barium carries +2 charge and chlorine carries -1 charge. So that if you want to make a formula of barium chloride, you must have balanced these charges, so that 2 chlorine must be there, so that the barium chloride become BaCl2, which is used in aqueous form. Now we are reacting barium chloride with sodium sulfate. I have just told you sulfate has -2 charge, SO4. So if you want to form a formula of sodium sulfate, so you have to balance the charges of the two radicals. Sodium has the charge +1. So how many sodium should be there in this equation, in this formula? कितने सोडियम होने चाहिए? जाहिर सी बात है, अगर सल्फेट पर -2 चार्ज होता है तो सोडियम को 2 होना चाहिए, तभी कंपाउंड फॉर्म होगा। तो ये हुआ Na2SO4, which is in aqueous form. When the reaction has been taking place, what happens? Barium sulfate is formed. Barium reacts with sodium sulfate to form barium sulfate, BaSO4. क्या ये फार्मूला सही है? चेक करते हैं। SO4 सल्फेट पे -2 चार्जेस हैं, बेरियम पे +2 चार्जेस हैं, तो इसका मतलब दोनों एक सिंगल रेडिकल भी आपस में कंबाइन होकर एक कंपाउंड बना सकते हैं। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये सही है। BaSO4 प्लस कौन बचा? Cl Na। Na पे +1 होता है, Cl पे -1 होता है। इसको लिखते जाइए और इसको याद भी करना है आपको। तो अब सोडियम और क्लोरीन आपस में अगर रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से सोडियम, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। उसका फार्मूला क्या होना चाहिए? अगर दोनों 1-1 हैं तो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं और सोडियम क्लोराइड
बनेगा NaCl। बट सोडियम यहाँ पे 2 था और सोडियम यहाँ पर 2 था और क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने रिएक्टेंट्स के बराबर ही बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। ये फंडामेंटल लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिस्ट्री। जितने रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट में वो सारे रहेंगे, वो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमको 2 लिख देना चाहिए। It means 2 molecules of sodium chloride is formed, but the key factor which we are discussing about क्या है वो कि जो बेरियम सल्फेट है ये एक्वस नहीं है, ये है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मडी सॉलिड सब्सटेंस होता है जो आपके रिएक्शन के दौरान आपकी टेस्ट ट्यूब के नीचे कहीं पे सेटल हो जाता है, जम जाता है उसके चारों तरफ। ये एक्वस फॉर्म में नहीं होता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। और बेरियम सल्फेट किस कलर का प्रेसिपिटेट है? अलग अलग कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। So what happened when barium chloride reacted with sodium sulfate? When barium chloride reacted with sodium sulfate, barium sulfate as a white precipitate formed and sodium chloride is also formed. So precipitate formation is also a check for the chemical reaction. What else? What next? Change in temperature. चेंज इन टेम्परेचर। आपको याद है पहला रिएक्शन जब मैंने आपको दिया Zn, जिंक which react with H2SO4 and you have seen that zinc sulfate is formed with releasing H2. When this reaction is performed, another thing is happened. What happened? Evolution of gas, along with evolution of gas, energy is also evolved. The surrounding temperature has been increased. In the same sense, when calcium oxide, चूने का पत्थर, when it reacts with water, H2O, CaO, calcium oxide reacts with water, it forms CaOH twice, calcium hydroxide, which is a slacked line, and when this reaction takes place, the temperature of the surrounding increases. सराउंडिंग का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, हीट निकलती है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो when during the chemical reaction this kind of phenomena is taking place, it is also an effect of the chemical reaction. This can be also observed as the effect of the chemical reaction. And when this kind of phenomena is happening, then you can say there must be a chemical reaction is performed. What else can be seen? What else can be observed as the effects of the chemical reaction? और क्या होता है? The fourth is done. The fifth is change in state. Very common. Change in state. Most of the time, when a chemical reaction performs, the state change also takes place. So, what do I mean by the change in state? Do you observe? Do you understand this? Let us give you an example. Hydrogen and oxygen, they are combining to each other. They are combining to form water. Let me tell you one thing, this reaction is not completed. Hydrogen is H2, oxygen is O2. They are naturally found in this way in the nature. Now think about the charge value of the hydrogen. Hydrogen has +1 charge, oxygen has -2 charge. So 2 hydrogen will have +2 charge and 2 oxygen will have
-4 चार्ज। तो क्या ये बैलेंस है? क्या इक्वेशन परफॉर्म हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे? कौन कम है? हाइड्रोजन कम है। हम किसी को हटा नहीं सकते, हम बढ़ा सकते हैं। हाइड्रोजन कम है 2, तो हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये मॉलिक्यूल है। हम किसी भी सब्सटेंस, किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल को नया नहीं बना सकते, नया मॉलिक्यूल नहीं फॉर्म कर सकते। हम मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा सकते हैं। हम 1 से 2 मॉलिक्यूल ले सकते हैं, 3 मॉलिक्यूल ले सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल यूज किए तो हाइड्रोजन की संख्या हो गई 4 एंड ऑक्सीजन इज ऑलरेडी हैविंग 4। I mean to say about the number of charges. So oxygen has number of charges 4 and hydrogen has number of charges 4. So now reaction is performed and 2 molecules of H2O is formed. 2 molecules water के बन गए. The fact is that hydrogen and oxygen are naturally gas. And when reaction is performed and H2O is formed, it is a water. That is in liquid form. So what are you seeing there? The change in state has been taking place. So this way we have discussed about what is a chemical reaction and what are the effects of chemical reaction. हमने 5 इफेक्ट्स की बात की जिसमें एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, change in temperature, formation of precipitate and change in the state of the substance. ये 5 चेंजेस हमने आपसे डिस्कस किए। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ये केमिकल इक्वेशन क्या है? So after chemical reaction we are going to chemical equation. Chemical equation क्या है ये केमिकल इक्वेशन? इट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। जो मैं अभी तक बोर्ड पे कब से लिखे जा रहा था वो सब क्या है? वो केमिकल इक्वेशन है जो केमिकल रिएक्शन के बारे में सिंबॉलिकली हमको जानकारी दे रहा है, उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। यानी कि अगर हमने कहा बेरियम क्लोराइड तो बेरियम क्लोराइड की स्पेलिंग तो BARIQM, ठीक है। अब इसको अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखना चाहें तो हम उसको BaCl2 लिखते हैं। ये हमको केमिकल इक्वेशन के दौरान पता चलता है। केमिकल इक्वेशन क्या क्या बताता है, आइए हम उस पर बात करते हैं, कि जानने की कोशिश करते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन हमें कितनी जानकारी देता है। और ये आपके सिलेबस में भी है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं कि केमिकल इक्वेशन कौन कौन सी इंफॉर्मेशन कैरी करता है। लेट अस सी। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे Zl reacts with H2SO4. So Zl is solid, it is aqueous, and the formation is happening ZnSO4 aqueous with H2, which is a gas. Now see this chemical equation. What informations are given by this chemical equation? First, अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इक्वेशन में कौन कौन से सब्सटेंस रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं। जिंक और H2SO4, ठीक है। मतलब इसको आपने देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इसमें रिएक्टेंट्स को दिखाया जाता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए इसको देखकर कि बताइए रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं, तो क्या आप नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन टेल्स अबाउट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। केमिकल रिएक्शन हमें रिएक्टेंट्स और उसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देता है। दूसरी बात क्या बताता है ये? अब आप यहां पर अगर देखेंगे और हम आपसे पूछें
कि बताइए आपने तो ये क्लियर कहा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन कितने जिंक और कितने सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बता सकते हैं? ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1, यहाँ पे कुछ नहीं है इसका मतलब 1, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसका मतलब होता है कि 2, यानी कि एक जिंक और एक सल्फ्यूरिक एसिड आपस में रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल जिंक का एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्ट करके एक मॉलिक्यूल जिंक सल्फेट बना रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व। तो ये आपको बताता है अबाउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। Also this tells about state of the reactants. See, केमिकल रिएक्शन हमको ये भी बताती है कि हमारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहे हैं वो किस फिजिकल स्टेट में हैं। तो फिजिकल स्टेट ऑफ reactants and products। और क्या पता चलता है, और क्या ये केमिकल रिएक्शन हमको बताती है? अगर यहाँ पर कोई स्पेशल कंडीशंस इन्वॉल्व है, मान लीजिए केमिकल रिएक्शन को हमने परफॉर्म करना चाहा और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी? हम उसमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करेंगे, हम उसको शायद इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू परफॉर्म कराएं या हम उसको गर्म करें, हीट दें उसको, तब वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो वो सारी कंडीशंस यहाँ मेंशन की जाती हैं एरो के ऊपर। तो केमिकल रिएक्शन को देखने पर आपको सुटेबल कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। Suitable condition of surrounding इसके साथ साथ केमिकल रिएक्शन और क्या बताती है? प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, गैस कौन सी निकल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पीपीटी लिखा हुआ है तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे देखिए गैस इवॉल्व हो रही है, हम कहेंगे यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, गैस भी निकल रही है। तो एक केमिकल रिएक्शन को देखकर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बहुत सारी जानकारी हमको मिलती है। और अगर हम अब देखिए ये चीज हमने केवल कितने में लिखी और इस केमिकल रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन हम एक पैराग्राफ में लिखते हुए चले जा रहे हैं, तो अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर केमिकल इक्वेशन क्यों किसी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन लिखा जाए? इसीलिए लिखा जाए क्योंकि केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है वो उस रिएक्शन के बारे में होलिस्टिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमको उसके बारे में लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना पड़ता। हम केवल एक लाइन का इक्वेशन अगर ध्यान से देख लें तो हमको उस रिएक्शन के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये इंपॉर्टेंस है केमिकल इक्वेशन का। सो on the basis of their combining property, on the basis of their products, on the basis of evolution of energy or utilization of energy, chemical equations can be categorized in many ways, which we shall discuss in our next class. So our next topic will be different types of chemical equations, chemical reactions, and we will discuss about the chemical equations of those reactions also. So thank you very much for joining today. Good luck.